Hello friends, welcome to Science at Click. We are discussing the lesson element, compounds and mixtures, and in that we have already discussed what are elements and what are compounds. Now let's start with our next topic, that is mixture. Okay. Now what are mixture? When two or more compounds, we have seen that elements are purest form of it's the purest form of matter. Why? Because it is made up of only one type of particles. When some different elements combine together in a fixed proportion, we get a compound. They are different from elements because they show altogether different properties than their original constituent elements. Okay, now how mixtures differ from them? That when two or more elements are there together, they are just there together, they are not reacting, they are not forming a new compound. In that case, what we say it is a mixture. For example, if there is an alloy. Okay, so if when there is an alloy, when we are talking about an example of alloy, say bronze is an alloy, brass is an alloy, okay, your stainless steel is an alloy. It's a mixture of different elements. They are there together but they are not reacting to form a new substance. Okay, so the alloy still maintains properties of metals, but why we are mixing it? To enhance its properties we are mixing them. Okay, so when two or more elements or compounds, when you dissolve sugar in water, what is happening? No new substances form, no new compound is forming. Sugar is still sweet, water is still liquid in state. Okay, so they are maintaining their original properties, okay, but they are mixed together to enhance the properties. You are getting sugar solution, or if you dissolve salt in water, you will get salt solution. So this is a mixture. No new substances form. The original substances are there in their original form, but they are just there together. We call it a mixture, and we can easily separate these constituents of mixture by using simple physical methods. हम लोगों ने देखा था कि compounds में आप लोग को you will not get the original substances, the original elements by simply heating the substance or by simply sieving it or by filtration. No, you cannot obtain elements from compounds by using these physical methods. But in case of mixtures, definitely we can use different separation techniques. These separation techniques we are going to discuss in the next video. Okay, but yes, you can always use separation techniques to separate the constituent material of the mixture. Okay, so now let's see the definition. Then when the two or more elements or compounds get mixed with each other in any ratio. In compounds we have seen that when they get mixed in a fixed ratio, they form compound. If that ratio changes, compound changes, we get altogether a different compound, isn't it? But in case of mixture, either two elements get mixed with each other, or two compounds get mixed with each other, or one or two elements get mixed with one or two compounds. Any combination is possible, but only condition is that no new substances form and you can mix them in any ratio. Okay, generally when we form alloys, we mix them in a proper proportion to get those properties, required properties, but it's not like that, it must be 2:1 like that. Plus minus 55 to 60% of one metal, 20 to 30% of another metal. So this flexibility is there when we are talking about mixtures. Okay, no new substances form. No new substance, remember this.
Okay, in case of compounds, when elements were reacting, we were getting a new substance which is known as compound. Here no new substance is formed. Components retain their original properties. If you add sugar in water, it will not lose its sweetness. If you add salt in water, it will not lose its salty nature. Okay, so original properties are there, and you can easily boil of water and you will get back the salt. So you can easily obtain, and salt will be as it is and in the same amount also, because it is not getting consumed, it is not reacting, it is not utilized, it is there as it is. They are just there together with each other. Okay, now mixtures are impure substances. Okay, now as we have seen that elements are made up of only one type of particle, they are pure substances. Compounds also made up of one type of particle known as molecule. So two or more particles, atoms of different elements combine together to form a new entity, a new small molecule, particle known as molecule, और वो molecule आपके compound में पूरा repeat हो रहा है. तो आपके compound में एक ही type का particle repeat हो रहा है. If you are talking about a drop of water, molecule of H2O is repeating itself. This molecule is repeating itself many times. Are you getting it? So this is also a pure substance. But in case of mixtures, it will contain different types of particles, and hence we call it impure substance. Constituents can be obtained back. You can obtain back constituent of any mixture by simple physical processes like heating, sieving, hand picking, filtration, sedimentation. There are so many separation techniques to obtain components or constituent of any mixture. It depends upon what type of mixture you are talking about. Depending upon the constituent which are forming that mixture, depending on those constituent, we select the method of सेपरेशन. अभी मैडम क्यों सेपरेट करना है मिक्सचर को? तो इसलिए सेपरेट करना है कि कभी कभी कॉन्स्टिट्यूएंट हम लोग को चाहिए होते हैं वापस, तो एट दैट टाइम वी यूज सेपरेशन टेक्निक. ओके, जैसे कि हम लोग को सॉल्ट चाहिए फ्रॉम सी वाटर. व्हाट वी आर डूइंग इट, वी आर मेकिंग ए सी बेड. वो पानी अलग करके ऐसे उसको वाटर को इवेपोरेट किया जाता है, एंड वो वाटर इवेपोरेट होने के बाद आपको क्या मिलता है? सॉल्ट. दैट इज़ वेरी क्रूड, इन वेरी क्रूड फॉर्म. देन दैट इज़ प्यूरिफाइड इन इंडस्ट्री. बट सी वाटर से सॉल्ट ऑब्टेन करने के लिए व्हाट वी आर डूइंग, विच सेपरेशन टेक्निक वी आर यूजिंग? वी आर सिंपली यूजिंग इवेपोरेशन. ओके, so that is a mixture. Sea water is a mixture. Why? Because its constituent means water and different types of salts which are dissolved in it can be easily separated. We are using sun's heat for this evaporation process. आगे बात समझ में? सो दीज आर नोन एज मिक्सचर्स. अभी देखते हैं कैसे कैसे अलग टाइप के मिक्सचर्स होते हैं. देर आर टू टाइप ऑफ मिक्सचर्स. हम लोगों ने एलिमेंट्स वाला वीडियो में इनिशियली जब लेसन स्टार्ट किया था तब एक फ्लो चार्ट देखा था, उसमें मैंने पूरा क्लासिफिकेशन दिया था, पूरा माइंड मैप है वो लेसन का. ओके, उसमें मैंने बताया था कि मैटर इज क्लासिफाइड इनटू एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स. एलिमेंट्स आर फर्दर क्लासिफाइड एज मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स एंड नोबल गैसेस. कंपाउंड्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू कोवैलेंट कंपाउंड्स एंड आयोनिक कंपाउंड्स. ओके, दैट विल बी अ सेपरेट लेसन. एंड मिक्सचर्स आर क्लासिफाइड इनटू homogeneous mixtures and heterogeneous mixture. Okay, now let's see what are homogeneous. Homo means same. Okay, so those who are, when you make a mixture, you take two constituent, you mix them, you are getting a mixture. तो ये मिक्सचर बनाने के बाद अगर वो सेम है थ्रू आउट, ओके, तो उसको हम लोग बोलते हैं होमोजीनियस. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू पुट सॉल्ट इन अ वाटर और शुगर इन अ वाटर, यू स्टर इट. Okay, when you stir it, it gets, the particles of salt or sugar get distributed thoroughly in the whole glass of water. Okay,
तो अगर ये डिज़ोल्व होने के बाद, आफ्टर डिज़ोल्विंग, इफ़ यू कंसिडर दिस पोर्शन, if you consider this portion means upper portion of water and then lower portion of water, then in that case it will show the same salty test. Okay, even the particles of this salt, if you evaporate the water and then you weigh the remaining water, if you take equivalent amount of salt solution, in that case you will observe that you will get nearly same amount of salt particles over there. Okay, if you put salt solution, same thing with sugar solution, if you put some color, ink or food color in a glass of water, what will happen, and you stir it, it will evenly get distributed. यहाँ पे जो शेड होगा आपके रेड कलर सोल्यूशन का, वही शेड आपको ये कॉर्नर में मिलेगा, वही यही यहाँ मिलेगा, वही यहाँ मिलेगा, same shade you'll get over here. So it gets evenly distributed throughout the mixture, then that is known as your homogeneous solution. Okay, alloys also, alloy में ऐसा होता है क्या कि आपका इधर ये आपको ब्रॉन्ज में इधर कॉपर ज़्यादा दिख रहा है तो इधर आपको टिन ज़्यादा दिख रहा है, नहीं, इट्स सेम थ्रू आउट, थॉरोली मिक्स किए हुए हैं दोनों एलिमेंट्स एंड देन वो ब्रॉन्ज बनता है. स्टेनलेस स्टील में दिख रहा है इधर कार्बन है, इधर आयरन है, इधर ये है क्रोमियम है, ऐसा अलग अलग नहीं दिखता. क्यों? बिकॉज इट इज थॉरोली मिक्स्ड, इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर मीन्स परसेंटेज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स सेम इन ईच पार्ट ऑफ दैट वेसल एंड दैट्स वाई इवन ब्रास. Okay, so these are what this is an alloy of copper and zinc. So these are all what alloys हो गया, आपके true solutions हो गए, मतलब जिनमें आप जो पार्टिकल डाल रहे हैं, जो कंपाउंड डाल रहे हैं वो soluble है पानी में, that is known as true solution. तो वो आपके क्या होते हैं, सारे के सारे homogeneous mixtures होते हैं. आ रही है बात समझ में? एयर को भी कंसिडर करो. एयर क्या है? Air is a mixture. Air is a mixture of what? Oxygen gas, nitrogen gas, carbon dioxide gas. Okay, some dust particles are there, some other 0.001% कुछ और भी है dust particles, pollens ऐसा. तो this is also a mixture. Okay, but it is also a homogeneous. Pollution के factors छोड़ दो. ओके लेकिन ये जो मेन कंस्टिट्यूएंट है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, इनका परसेंटेज पूरा वर्ल्ड वाइड में सेम ही होगा. इसको हम 70-80% लिखते हैं, सॉरी इसको 78%, इसको 21%, इसको 0.03%. सो दिस इज कॉमन थ्रू आउट, पूरे वर्ल्ड में ये सेम है. पोल्यूटेंट को छोड़ के प्योर एयर इज अ होमोजीनियस मिक्सचर. दिख रहा है हाँ हाँ ये साइड में रूम के ऑक्सीजन ज़्यादा है, ये साइड में नाइट्रोजन गैस ज़्यादा है, ऐसे दिखता है हम लोग को? नहीं, ऐसे फील होता है. मैम बोलोगे, आप बोलोगे मैम कलरलेस है ना, कैसे दिखेगा? अच्छा ठीक है, फील हो रहा है कि यहाँ पे नाइट्रोजन ज़्यादा है तो आई एम फीलिंग ब्रीथलेसनेस, वहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा है तो मैं अच्छे से इनहेल कर रही हूँ. नहीं, this is not happening. So that's why air is what also your homogeneous mixture. Okay, अभी देखते हैं what are heterogeneous mixture, जो सेम नहीं होते throughout. You pour oil in water, stir it, let it settle. अगेन क्या होगा, ऑयल ऊपर जाएगा. क्यों जाता है तुमको पता है, सबको पता है. ऑयल इज लेस डेंसर देन वाटर, सो इट विल गो अप, इट विल फ्लोट ऑन द वाटर एंड एवरीथिंग. ओके, यू अगेन स्टर इट, अगेन आफ्टर सम टाइम इट विल सेपरेट. नाउ यू टेक दिस पोर्शन ऑफ योर सोल्यूशन, this portion means वो एकदम अपर वाला portion and this portion of solution, its composition is different. यहाँ पे सिर्फ oil है, यहाँ पे oil and water है, यहाँ पे सिर्फ water है. तो ये आपका क्या है, आपका ये है heterogeneous solution. What is this? This is a heterogeneous solution. बेल सबको पसंद है, किसे नहीं पसंद? चाट जाके खाते हो ना,
ओके, सो भेल में भी इफ़ यू कैन सी, यू कैन सेपरेट आउट अपर पोर्शन में शेव पोर्शन ज़्यादा है, यहाँ चुरमुरा ज़्यादा है, ओनियन के पीसेस जो है वो ऊपर के पोर्शन में ज़्यादा है. सो दिस इज़ व्हाट हेटेरोजीनियस मिक्सचर. और इसका कंपोजिशन, ये मिक्सचर है, फिक्स थोड़ी है कि इतना ही ये डालना है उतना ही ये डालना है. अपने पसंद से कैसे भी कम ज़्यादा कर सकते हैं. किसी को पीनट पसंद है, किसी को नहीं पसंद है. ओके, सो दिस इज व्हाट हेटेरोजीनियस मिक्सचर. कंपोजिशन सेम नहीं होता, फिक्स प्रोपोर्शन में कभी भी मिक्स नहीं होते. इसमें भी मैं कितना भी ऑयल डालूँ, कितना भी वाटर डालूँ, मिक्सचर क्या है मेरा, ऑयल एंड वाटर का मिक्सचर है. पहले वाले में भी मैं सॉल्ट कितना भी डाल सकती हूँ जब तक कि सैचुरेटेड सोल्यूशन नहीं बन जाता. आई कैन वेरी इट, आई विल गेट सॉल्ट सोल्यूशन. Okay, it depends on how, what is my requirement, according to that I'll make the solution. Okay, तो आगे बात समझ में आ गया. डिफरेंस ऑयल एंड अल्कोहल हम लोगों ने लिया, तो भी ऐसा ही होगा. अल्कोहल नीचे होगा, ऑयल ऊपर होगा. ठीक है, पेट्रोल ले लो ऑयल के जगह पे, वो भी फ्लोट होगा वाटर पे. ओके, सो ये सारे जो आपके मिक्सचर है जो मिक्स नहीं होते, जो दो लिक्विड्स मिसिबल नहीं है, एक दूसरे के साथ सोल्यूबल नहीं है, ऐसे आपके सॉल्यूशन. अल्कोहल और वाटर आपने लिया तो वो होमोजीनियस मिक्सचर हो जाएगा, क्योंकि अगर आप स्टर करते, उनकी डेंसिटी अलग है, लेकिन अल्कोहल इज सोल्यूबल इन वाटर, तो अगर आप स्टर करते हो तो वो आपको होमोजीनियस मिक्सचर. तो ये मिसिबल लिक्विड्स है, तो मिसिबल लिक्विड्स मिक्स हो जाते हैं तो होमोजीनियस सॉल्यूशन बनाते हैं. ओके, और सॉरी अगर इमिसिबल लिक्विड्स है, मतलब जो एक दूसरे के साथ, दे कैन नॉट गो वेल विथ ईच अदर, दे आर नॉट सोल्यूबल इन ईच अदर, एट दैट टाइम दे विल सेपरेट फ्रॉम ईच अदर एंड दे विल फॉर्म व्हाट, हेटेरोजीनियस मिक्सचर. ओके, दिस इज क्लियर. अभी और कुछ टाइप के हैं, वो उनकी बात करेंगे. अदर टाइप्स ऑफ मिक्सचर, मतलब एक हम लोगों ने क्लासिफिकेशन देख लिया मिक्सचर्स का, कि होमोजीनियस होते हैं एंड हेटेरोजीनियस होते हैं. ओके, एक और देखेंगे अकॉर्डिंग टू द स्टेट. हम लोगों ने पढ़ा है ऑलरेडी, देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, दैट इज सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस. फाइन, नाउ इनको करते हैं. सॉलिड इन लिक्विड, ये एक मिक्सचर हो गया. ओके, अगर आप कोई भी सॉलिड लिक्विड में डालते हो, फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट इन वाटर, शुगर इन वाटर. ओके, देन सॉलिड इन सॉलिड, जैसे हम लोगों ने अलॉय देखा, ये ऊपर आना चाहिए था, सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड इन लिक्विड एंड देन सॉलिड इन गैस. ओके, तो सॉलिड इन लिक्विड आपका सॉल्ट सॉल्यूशन हो गया, सॉलिड इन सॉलिड अलॉय हो गया. अब दो मेटल्स एक दूसरे के साथ मिक्स कर रहे हो, तो 2 सॉलिड्स यू आर मिक्सिंग टू गेट योर मिक्सचर. सो सॉलिड इन सॉलिड विल बी योर व्हाट, अलॉय. सॉलिड इन गैस, जब पोल्यूशन होता है तो कार्बन के सस्पेंडेड पार्टिकल्स एयर में होते हैं. ओके, सो दैट पोल्यूटेड एयर इज एन एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड इन गैस. आगे बात समझ में, ये भी एक मिक्सचर ही है. देन लिक्विड का देखेंगे, लिक्विड इन सॉलिड, जे लिखा ही है सब लोगों ने, फलेरो वगैरह. ओके, तो वो जूसी होता है. ओके, तो वो जो सेमी सॉलिड मटेरियल है जिसमें, या फिर जेली में लिक्विड सॉलिड में ट्रैप किया हुआ है, या फिर लावा केक वगैरह अगर पसंद होगा, तो दैट मोल्टन चॉकलेट इज ट्रैप्ड इनसाइड सॉलिड केक, सो दैट इज ऑल्सो अ मिक्सचर. फिर लिक्विड इन सॉलिड, हाँ, फिर गैस इन सॉलिड. सॉलिड इन सॉलिड तो हो गया हमारा. ओके, अभी लिक्विड इन सॉलिड लिया, फिर गैस इन सॉलिड. गैस इन सॉलिड का एग्जाम्पल जो हमारे स्टोन्स होते हैं ना, कुछ कुछ स्टोन्स जो बहुत लाइट वेट होते हैं. ओके, पमाई स्टोन वगैरह जैसे स्टोन होते हैं जो क्लीनिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं. तो वो स्टोन में जब क्या बोलते हैं, जब वो प्रिपेयर होते हैं, मतलब इन ड्यूरिंग वोल्केनो इरप्शन वगैरह जब प्रिपेयर होते हैं, तो उनमें गैस ट्रैप हो जाता है. ओके,
तो वो स्टोन्स, वो रॉक्स जो है जिनके अंदर गैस ट्रैप्ड है, पमाई स्टोन वगैरह एग्जाम्पल आएगा इसका, दैट इज गैस ट्रैप इन अ सॉलिड. ओके, अभी गैस का देखेंगे. सॉलिड इन गैस हो गया हमारा. सॉलिड इन गैस क्या है आपका? सॉलिड, अच्छा एक छूट गया यहाँ पे, देखो. लिक्विड इन सॉलिड, फिर लिक्विड इन लिक्विड रह गया ना, वो पहले देखेंगे. लिक्विड इन लिक्विड, ऑयल एंड वाटर देखा हम लोगों ने, हेट्रोजीनियस बना सकता है. अल्कोहल एंड वाटर लिए तो आपका क्या बनेगा? होमोजीनियस. सो बेसिकली लिक्विड, वन लिक्विड इज गेटिंग मिक्स्ड विथ अनदर लिक्विड. ओके, देन गैस इन लिक्विड. गैस इन लिक्विड बोलो, आपका कोका कोला, पेप्सी. ओके, सो उसमें क्या है? प्रेशराइज करके गैस फिल किया गया है आपके लिक्विड के अंदर. ओके, सो दैट इज योर गैस डिजॉल्व्ड इन अ लिक्विड. सो दैट इज योर मिक्सचर, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन कोक और पेप्सी और एनी कार्बोनेटेड ड्रिंक इज एन एग्जाम्पल. Carbon dioxide in any carbonated drink is an example of gas in liquid. So solid in solid in solid, solid in solid, solid in liquid, solid in gas. Now liquid in solid, liquid in solid, liquid in liquid and gas in liquid. Okay, अभी गैस का देखते हैं. गैस इन सॉलिड हम लोगों ने देख लिया, रॉक का एग्जाम्पल. देन गैस इन लिक्विड देख लिया. अभी लिक्विड इन गैस देखेंगे. ओके, सो लिक्विड इन गैस क्या आएगा एग्जाम्पल? ड्यू ड्रॉप्स, क्लाउड्स, फाइन फाइन water droplets are there suspended in the atmosphere forming, or your rain in the atmosphere which is falling down, that is your liquid in gas. And gas in gas, the final one is gas in gas, that is what? Your air. Okay, so different gases are mixed with each other to form this mixture. So these are other type of mixtures. Okay, जो हम ले रहे हैं स्मॉल अमाउंट में. ओके, जो हम ले रहे हैं स्मॉल अमाउंट में उसको हम बोलते हैं सोल्यूट. ओके, जो हम स्मॉल अमाउंट में ले रहे हैं उसको हम बोलते हैं सोल्यूट. जिसमें हम डाल रहे हैं, मतलब जो लार्ज अमाउंट में है हमारा, उसको हम लोग बोलते हैं सॉल्वेंट. ओके, तो सॉलिड इन लिक्विड में सॉलिड आपका सोल्यूट है, लिक्विड आपका सॉल्वेंट है. लेकिन लिक्विड इन सॉलिड में जब हम लोग कंसिडर करते हैं तो लिक्विड आपका सोल्यूट है और सॉलिड यहाँ पे क्या हो रहा है? सॉल्वेंट. सो स्मॉल अमाउंट में जो आपके सॉल्यूशन में है दैट इज योर सोल्यूट, एंड इन अ लार्ज अमाउंट जो मीडियम है, जिसमें डिस्पर्स हो रहा है, जिसमें आपका सोल्यूट डिसॉल्व हो रहा है या फिर मिक्स हो रहा है, दैट इज योर सॉल्वेंट. एंड सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट विल गिव यू व्हाट? सॉल्यूशन. अभी सॉल्यूशन एक ही टाइप के नहीं होते जो होमोजीनियस सॉल्यूशन, कुछ हेटेरोजीनियस सॉल्यूशंस भी होते हैं जिनको हम सस्पेंशंस बोलते हैं. ओके, तो सस्पेंशंस क्या होते हैं? तो सस्पेंशंस ऐसे होते हैं कि मेडिसिन लिया आपने, कफ सिरप लिया है, हम लोग हमेशा डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिक्विड मेडिसिन लेते हैं. तो उसकी बॉटल चेक करो, उस पर लिखा होता है शेक वेल बिफोर यूज. Okay, why to shake well? Because there are some particles over there. Okay, over the period of time they settle at the bottom. When they settle at the bottom and you take only upper portion of the liquid, are you consuming the whole medicine, whole constituents of the medicine? No, this is a heterogeneous mixture. You have to shake it well so that all particles get well distributed in your bottle and then you take the medicine. So this type of solutions are known as suspension. Okay,
ये पार्टिकल्स सेटल डाउन होते हैं क्योंकि ये क्या होते हैं, बड़े पार्टिकल्स होते हैं, हैवी पार्टिकल्स होते हैं। जब आप सॉल्ट डिसॉल्व कर रहे हो वाटर में तो वो सॉल्ट के पार्टिकल्स इतने छोटे 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 डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं वाटर में कि वो वैसे ही सस्पेंडेड ही रहते हैं आपके लिक्विड में ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। दे डोंट सेटल डाउन बट दीज आर द हेवियर पार्टिकल्स, दीज सेटल डाउन एंड सच टाइप ऑफ heterogeneous solution is known as suspension. Okay, so this is all about different mixtures, that is homogeneous mixture, heterogeneous mixture, mixtures formed by mixing different states of matter with each other. We have seen example of all the things, and then we have seen what is solute, what is solvent, and what is solution, and we have also discussed what is suspension. Okay, for more videos subscribe to Science at Click and stay tuned. Thank you.